Assalamu alaikum and welcome to my vlog. I hope you're all well. और मेरे vlog का इंतज़ार कर रहे थे. I'm definitely sure कि you were waiting for this beach vlog. Sorry about the delay. मेरे पास बहुत सारी videos थी and I had to select and edit all of that. तो मुझे थोड़ा सा time लग गया set करने में क्योंकि they were all unorganized. थोड़ी different phones पर भी थी क्योंकि my phone charge died and then memory full हो रही थी so I had to use different phones to record, and some people also sent me some pictures as well, so thank you for that. So we were supposed to leave at 11 लेकिन थोड़ी सी देर हो गई packing वगैरह करने में, and then I had to clean up and साहब घर में वापस आना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सामान वापस जब लाते हैं अनपैक करते हैं तो it's one of the worst things to do जब थके हुए होते हैं. तो खैर मैंने सोचा कि पहले से सफाई होगी तो एटलीस्ट वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी. So we reached around like 1:30 and we got the parking passes like a night before, क्योंकि अगर आप नहीं ख़रीदते pass before online then you would have to park on the roads क्योंकि काफ़ी रश हो जाता है on the side roads और बहुत दूर parking मिलती है, like 30 minutes की walk भी करनी पड़ती है, लेकिन बच्चों के साथ it's not possible. तो खैर the Turkey Point beach was like an hour and 30 minutes from our place, लेकिन अगर आप टोरंटो से आ रहे हैं तो I guess an hour 45 I guess depending on the traffic. लेकिन this is a nice parking area of this beach. Is the perfect area actually क्योंकि ज़्यादातर beaches में जो होता है parking थोड़ी दूर होती है आपको walk करना पड़ता है with the things, और वो इतना अच्छा नहीं होता बच्चों के साथ क्योंकि पहले आप बच्चों को लेके जाएं and then you go back to your car and get the things. तो अगर आपने पार्किंग पहले से ले ली है I think $20 थी and it's for the full day. 10 बजे तक you can even leave your car, come back from the beach and then go back again. So that was perfect about that too. So the only thing was that if you're not getting a beach shelter, do get this small shelter. क्योंकि अगर आपको शेड ना मिले तो I mean today the weather was really hot, like it was almost like 28 degrees और there was not a sign of cloud. तो बीच के लिए परफेक्ट था, लेकिन अगर आप पानी में नहीं जा रहे then you are gonna get baked in the sun क्योंकि sand भी बहुत hot थी, like you could almost bake something in the sand अगर आप रख दें कि गर्म हो रही थी, like our feet were so hot. तो शुरू में तो हमें जगह नहीं मिली थी like under the trees. So we were sitting with an umbrella and the umbrella kept flying out. तो beach shelter था जिसका एक part रह गया था घर पर, तो वो नहीं सेटअप हो पाई. Then we found a perfect place under the trees. तो वो फिर किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं थी. So it was very shady. गर्मी भी नहीं लग रही थी जो नहीं जा रही थी पानी में. And then we had a floaty in a Walmart से ली थी and it was really good क्योंकि ये बस आप बैठ गए and then you're just floating in the water. तो गीले भी नहीं होते. अगर आपको स्विमिंग नहीं आती just sit on this and just keep floating away. It was relaxing. My daughter had fun. My son also sat. और काफ़ी लोगों ने बहुत मज़ा किया इस पर. The beach was really nice. It was nice and sandy. बिल्कुल साफ़ था. पानी भी clear था almost like there was weeds in the starting, लेकिन फिर सही हो गया था अंदर जाके I guess. मैं तो नहीं गई थी पानी में, लेकिन बाकी लोगों को बड़ा मज़ा आया. वी गॉट लाइक हमें खाने में जो था मैंने चिकन की हरियाली चिकन अ नाइट बिफोर मैरिनेट करके रख ली थी, तो वो हमने चूल्हे पे बना ली थी. द ओनली थिंग अबाउट दिस पार्क इज़ यू आर नॉट सपोज्ड टू डू बारबेक्यू हियर, लेकिन यू कैन यूज़ अ प्रोपेन स्टोव. तो वी हैड दैट. एक फैमिली ने रखा हुआ था और हम अपना भूल गए थे. तो अगर दो होते तो अच्छा रह होता क्योंकि जल्दी फिर और भी चीज़ें साथ साथ होती जाती. पर नेवरदलेस इट वाज फन. हमने बोटियाँ पहले फ्राई कर ली एंड देन वी गॉट दैट ब्रेड, फ्लैट ब्रेड होती है. नॉट रियली रिमेम्बरिंग द नेम. आई थिंक इट वाज लवाश ब्रेड. आई एम नॉट रियली श्योर. तो ये पतली बिल्कुल होती है, शावरमा में यूज़ होती है. तो बस इसको हमने हल्का सा तवे पे सेका था एंड देन जस्ट सर्व विद बोटी एंड एनी चटनी केचप और जो भी आपको डालना है. एंड देन समवन गॉट बर्गर्स और कबाब. तो बस वो खाए एंड देन वी गॉट फ्राइज फॉर द किड्स फ्रॉम पिज़्ज़ा की शॉप कुछ क्लोज बाय नहीं थी. मैंने वी थॉट कि वी वुड जस्ट गेट द पिज़्ज़ा फ्रॉम द बीच फॉर द किड्स. बाकी वी हैड टी
चाय पी वहाँ पर बना के हमने, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट वी लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि आफ्टर स्पेंडिंग सच अ लॉन्ग डे सर में दर्द हो जाता है, तो वो चाय पी कर यू फील सो एनर्जाइज्ड. एंड देन द किड्स kept going into the beach और sand castles बना रहे थे, and I sat under the trees. फिर बस आफ्टर टी कुछ लोग जो थे अपनी चेयर्स बीच के करीब ले गए थे. I sat under the tree. बच्चे जो थे एक आध बार फिर पानी में गए, and then they were just playing near the water. तो अच्छा रहा. It was a good day. शेड में अच्छा था, ठंडा था. And then आई थी hyperlapse की, तो you can see like boats and birds as well flying by. बड़ी खूबसूरत आ रही थी, तो I thought कि why not just share that too. तो it's not really bad अगर आप beach plan कर रहे हैं, an hour and 30 minutes, and the parking is perfect. बिल्कुल सामने, you can even see your car and even go like get things and मतलब even आप सारी चीज़ें नहीं भी कैरी कर रहे तो कार में रखी हुई हैं, and you just bring it. फिर हमने यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 6:30 सवा 6 हो गए थे. हमें निकलते निकलते दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन वी वर सो टायर्ड एंड हंग्री, क्योंकि किड्स वर हंग्री, क्योंकि उनके मतलब कुछ भी नहीं था, पिज़्ज़ा भी नहीं मिला था. वी थॉट के रास्ते में इन लोगों को कुछ दिला देंगे, तो बस हम लोग ने तो बर्गर खा लिए थे, बड़े मज़े के थे विद ऑल दैट कॉन्डिमेंट्स. और यहाँ पर छोटी सी लाइक शैक्स बने हुए हैं, यू कैन बाय लाइक वाटर शूज़ या और भी चीज़ें जो आप भूल गए हैं. बट आई वुड रिकमेंड टू बाय वाटर शूज़, क्योंकि जो सैंडल्स या चप्पलें होती हैं वो गर्म हो रही थी लोगों की, एंड द सैंड वाज गोइंग इनसाइड, और पाँव बिल्कुल यू नो दे कुडंट इवन वॉक इन देम. तो वाटर शूज़ से ये था कि योर फीट वर क्लोज इनसाइड, तो मट्टी आ भी रही थी तो इतनी बुरी नहीं लग रही थी. तो या दैट वाज रियली गुड कि हमने वाटर शूज़ पहन लिए थे. बाकी या दिस वाज द टी. And we had tea cake and जलेबी. और उसके बाद हम लोग ने काफ़ी देर पानी में पाँव रख के, कुछ लोग तो पाँव रख के बैठ के, I just sat with my tea in the chair and watched the kids play. बच्चों ने काफ़ी enjoy किया. I mean the weather was perfect, not a single cloud was there. लेकिन हाँ, we should have left a little earlier. हम लोग 12 बजे निकले थे घर से, थोड़ी लेट हो गए थे. बाकी रात में मैंने काफ़ी चीज़ें कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें लॉन्ड्री में थी, तो सुबह मुझे वो निकाल कर पैकअप करना था, तो उसमें देर लग गई. डोंट फॉरगेट योर सनस्क्रीन और यू कैन गेट सन टैंड हियर, एंड इट्स नॉट रियली गुड इफ यू डोंट पुट सनस्क्रीन फॉर योर स्किन, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, एंड ऑलवेज बाय योर पार्किंग इन एडवांस इफ यू आर गोइंग टू दिस बीच. थिंग अबाउट दिस पार्क, दिस बीच एरिया इज़ दैट आप बारबेक्यू नहीं कर सकते, यहाँ पे बारबेक्यू अलाउड नहीं है, सो डू नॉट डू बारबेक्यू, बट यू कैन ब्रिंग अ प्रोपेन स्टोव. उसकी you were allowed, so always before going to any beach or conservation area, always read कि क्या allowed है क्या नहीं, and always book your parking if you're able to in advance, so that you're able to get a good parking spot. I hope आज का vlog आपको informative लगा और अच्छा लगे, तो let me know in the comments if you want to see more videos like these. I hope you're all well. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़. Bye bye.